Recently, a new policy has been announced for cadre allocation for the IAS, IPS and forest services officers, which is the All India Services. Now, जब भी नई cadre policies announce होती है तो there is a big issue which comes up, which is कि अगर cadre policy में कोई भी doubt है, that leads to a lot of litigation. For example, this new 2024 policy और 24 से ये फाइल चल रही है, 26 में पॉलिसी आई है, इज रिप्लेसिंग द 2017 पॉलिसी. एंड जब पहली बार ये 2017 वाली पॉलिसी आई थी तो इस पे भी केस हुए थे. एंड उस केस में, फॉर दोज ऑफ यू दैट डू नॉट नो, हमारे शशांक रत्नू सर, हु इज द को फाउंडर ऑफ upscprep.com, was also appearing for the candidates. Now, entire point of this is that in today's video we'll discuss the cadre policy, but it will be a deep dive into it कि भाई क्या exact provisions है. I'll try and explain to you कि भाई how does this impact your choices and what do you have to do in your journey. And it will be a slightly technical legal video, right? क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई इसमें कोई confusion हो. हालांकि इस बार पॉलिसी में अपार्ट फ्रॉम सम वेरी फ्यू थिंग्स, मोस्ट थिंग्स हैव बीन क्लैरिफाइड क्वाइट वेल. एक जो कोर एरिया है विच इज अगेन गोइंग टू कॉज सम इश्यूज, विल कम टू दैट इन अ बिट. So let's start with the discussion. Now, what you might see over here is AIS-1, and AIS-1 is the division within the Department of Personnel and Training, which is All India Services Division 1, जो कि cadre policy and इन सब चीजों को देखता है. अब recently, as you might have known also, the North Block and South Block, जहाँ पे सारी ministries होती थी, they have been emptied and this is now in कर्तव्य भवन. तो let's read through. सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, कि भाई किसके लिए वैकेंसी कौन डिटरमाइन करता है. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डज इट फॉर IPS. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डज इट फॉर IFS, which is forest service. एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डज इट फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो ये दोनों देखोगे आप, दीज आर मिनिस्ट्री, बट दिस इज अ डिपार्टमेंट. मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के नीचे डिविजन. Why? Because the Department of Personnel and Training is attached to the Prime Minister's office, which is under the Ministry of Personnel, Pensions and Public Grievances, which is also under the PMO's office. Overview. Right. तो अब होता क्या है? The cadre-wise category vacancies will be determined on the basis of the cadre gap on 1st of January of the year following the examination year. माने कि 2026 में if you're appearing for civil services, तो 1st of January 2027 को cadre gap जो होगा उसके बेसिस पे आपको वैकेंसीज दिखाई जाएंगी. अब ये कैडर गैप क्या होता है एंड ये चीजें कहां से आ रही हैं? नाउ कैडर गैप लुक्स लाइक समथिंग दिस. ये वैकेंसीज का एक ब्रेकअप आता है which is published by the Department of Personnel and Training by collecting all of the vacancies in consultation with the states. Now यहाँ पे आप देखोगे that there are multiple kinds of vacancies and उस तरीके से there are IAS, IPS and all services की vacancies. But on top of that, there is also category wise vacancies, right? Unreserved total vacancies IAS की इतनी है. Now इसके अलावा there is also a secondary structure to it, which is insider and outsider vacancies. And insider outsider vacancies are determined by your cadre strength as well as कि भाई स्टेट में कितनी vacancies इस बारी चल रही है. अब ये सब क्यों किया जाता है, मतलब क्या इसका लॉजिक है? दैट इज होल बेसिकली based on a very simple idea that there was a Baswan committee report. अभी Baswan committee report का क्या, I'll show you the title, which is to take a comprehensive look at the requirement of IAS officers over a large time frame. So this was a report headed by Shri B.S. Baswan, submitted to the Department of Personnel and Training. And इस report में यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, पेज नंबर 19 is what we are interested in. तो यहां पे क्या बोला गया है कि हर कार्डर का देयर इज अ ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ, माने कि एवरी कार्डर हैज अ नंबर ऑफ IAS ऑफिसर्स दैट आर सपोज्ड टू बी विद इन दैट कार्डर. एंड डिपेंडिंग ऑन, लेट्स से अब उत्तर प्रदेश में लेट्स से 600 IAS ऑफिसर्स आर सपोज्ड टू बी देयर. अब वो 600 में से एवरी गिवन ईयर सम विल रिटायर, मे बी somebody has left the service, or maybe somebody has died, or maybe whatever it is, for whatever reason vacancies are being created, and therefore जो sanctioned cadre strength है उसको fill करने के लिए vacancies निकाली जाएंगी. Right, so authorized strength vacancies, और ये report अगर आप देखोगे तो this is also available, you can search for it, Baswan report for IAS, IPS cadre allocation and cadre strength. तो all of this is basically based on this logic कि भाई आपको हर स्टेट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस मेंटेन करना है. बैलेंस किन चीजों का? बिटवीन डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड प्रोमोटेड.
तो एक तो ये है आपका, देन देर इज अनदर बैलेंस दैट हैज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन इनसाइडर एंड आउटसाइडर। तो ये मल्टीपल इस टाइप के जब चीजें हो जाती हैं तो इट बिकम्स अ बिट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सिस्टम। अब क्यों ये करना है? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियली वांट्स कि भाई जो हमारे बेस्ट कैंडिडेट्स हैं विच आर बीइंग रिक्रूटेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शुड बी सर्विंग इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट? अच्छे कैंडिडेट्स जो कि इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि भाई मैं अपने स्टेट के लिए काम करूंगा। अगर वो था तो देन यू शुड हैव गॉन फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज, बट यू अपियरिंग फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो यू शुड बी विलिंग टू वर्क फॉर इंडिया, राइट? एंड इंडिया इज द होल थिंग, इट इज नॉट कि दिस स्टेट दैट रीजन, नो। तो ये टाइप का जो रोटेशन है बेस्ड ऑन कार्डर स्ट्रेंथ, इनसाइडर, आउटसाइडर, ये बेसिक एक बैकग्राउंड है आपका विच इज इनफॉर्मिंग द कार्डर गैप। नाउ इसमें ऑब्वियसली बात है कि जैसे जैसे स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे स्टेट का काम बढ़ता है, तो दिस कार्डर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे रिसेंटली द कार्डर स्ट्रेंथ ऑफ उत्तर प्रदेश हैज इंक्रीज टू 683 आईएएस ऑफिसर्स, मीनिंग पहले 652 था, नाउ 31 आईएएस ऑफिसर्स मोर विद इन जस्ट दिस स्टेट। एंड सिमिलरली दिस इज इन कंसल्टेशन विद स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट। अनाउंसमेंट कौन करता है? सेंटर गवर्नमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज वहां की हैं। बट these are all central government cadre controlling authorities, but obviously the state will give the requirement, तो कंसल्टेशन इसमें चलती है। तो कैडर गैप के बेसिस पे चीजें होंगी। अब होगा क्या इसमें इज बेस्ड ऑन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो इन पे थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। नंबर 1, अब क्या किया है इन्होंने कि भाई देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स एंड कार्डर्स ऑन अल्फाबेटिकल बेसिस। तो पिछली बार जैसे कि यू माइट हैव सीन द कार्डर पॉलिसी वीडियो दैट आई मेड बिफोर, कार्डर्स वर सॉर्ट ऑफ लाइक दिस कि देयर वाज जोन्स एंड यू वर सपोज्ड टू गिव अ जोन का प्रेफरेंस एंड देन स्टेट्स विद इन दैट जोन का प्रेफरेंस। तो दिस वाज आल्सो अ रोटेशन सिस्टम दैट हैड बीन ब्रॉट अबाउट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई लोग ऐसे ना करें कि नहीं मैं इधर ही जाना चाहता हूं। दे वांट गुड पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड समहाउ whenever you create a system तो then there are people who try and game the system। बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू के टाइम पे हम मिले थे जिनको पता नहीं मिसगाइड कर देते हैं लोग कि भाई वो होम स्टेट अपना भरते ही नहीं है। दे आर लाइक कि नहीं होम स्टेट हम नहीं भरेंगे क्योंकि हमारे होम स्टेट में इतने इनसाइडर वैकेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो like this sort of gaming of the system was obviously being noticed by both UPSC and the government, and I think this new policy is a response to that कि भाई ये जो गेमिफाई कर रहे हैं लोग बिना बात के, इतना दिमाग लगा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, that is what is now going to change. Why? Because there is no choice. There is only one choice for you, which is whether you want to be counted as an insider for your home state or not. Meaning, आपको आपका home state चाहिए, yes or no. That is the entirety of the question. Now, I said कि भाई there is still one question which has been left unresolved, is this exactly कि भाई होम स्टेट आप बेसिकली डिफाइन कैसे कर रहे हो? क्योंकि होम स्टेट अगेन दिस इज अ पॉइंट ऑफ गेमिफिकेशन विद इन योर इंटरव्यू कैंडिडेट्स जब डैफ भरते हैं या मतलब मेंस से पहले जब वो चीजें भर रहे होते हैं, तो देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गेमिफिकेशन दैट इज हैपनिंग हियर। क्यों? क्योंकि आप डोमिसाइल के बेसिस पे भी होम स्टेट क्लेम कर सकते हो, आप जहां पैदा हुए थे आप उसके बेसिस पे भी होम स्टेट क्लेम कर सकते हो, जहां में भी आपके पास मतलब खानदानी जमीन है आप वहां पे भी होम स्टेट क्लेम कर सकते हो। तो देयर इज नो 100% श्योर शॉर्ट क्लैरिटी ऑन कि व्हाट एग्जैक्टली इज होम स्टेट, एंड मे बी दैट इज आल्सो बिकॉज कि भाई मतलब इन इंडिया देयर इज दैट फ्रीडम टू मूव अराउंड। बट एनी हाउ, once you have decided कि भाई this particular state is my home state and you have said that I am willing to serve in my home state, so these are two things. One, I have said that this particular state is my home state, and two, that yes, I want to be allocated my home state. These are the only choices that you have now. पहले क्या होता था, आपको सारे कार्डर्स भरने होते थे, बट नाउ ये जो अल्फाबेटिकल सिस्टम कर दिया है, इससे क्या हो गया है दैट यू डोंट हैव अ चॉइस, दिस इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड। आपके पास ये चॉइस है। अब इसके आगे होने क्या वाला है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा दैट देयर विल बी टू लिस्ट्स दैट आर क्रिएटेड। अब वो दो लिस्ट बनाई जाएंगी। पहले क्या होगा, लेट्स से देयर आर 1000 पीपल who have cleared civil services exam in this year, जिनमें से
500 वर सच जिन्होंने बोला कि दिस इज माय होम स्टेट एंड यस आई वांट टू सर्व इन माय होम स्टेट. तो फॉर दोज पीपल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अ सेपरेट लिस्ट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. अब ये 500 ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 500 है, दिस विल बी मिक्स. देयर विल बी मे बी रैंक 1000 आल्सो, रैंक 1 आल्सो. तो दिस इज अ मिक्स. तो ये मिक्स जो लोग हैं, दिस विल बी सेपरेटली टेकन आउट. अ सेपरेट लिस्ट विल बी क्रिएटेड ऑफ दिस एंड उस लिस्ट को पहले सर्व कैडर एलोकेट किया जाएगा. अब कैडर एलोकेट करने का जो इनका तरीका है, दैट इज अगेन एम्ड एट क्रिएटिंग मोर एंड मोर रैंडमाइजेशन. रैंडमाइजेशन क्यों? कि भाई आप गेमिफाई नहीं कर पाओ इसको. कोशिश इनकी यही है दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट कि अच्छा मेरे को कौन सा कार्डर मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा. आपको क्या देखना है, डू आई वांट टू सर्व इन माय होम कार्डर और नॉट. तो अब यहाँ पे काफी सारी अंग्रेजी लिखी है, विच इज सिंस द नंबर ऑफ कार्डर्स इज 25, साइकिल्स बनाई जाएंगी कि भाई 1 to 25 का एक साइकिल, 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100 एंड सो ऑन. जब तक ये पूरे 500 लोग नहीं हो जाते, इस तरीके से साइकिल बनाई जाएगी. नाउ दिस इज वेयर द कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट्स. कि अब जैसे हमने देखा था, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बैलेंस. तो एक तो थी कि भाई हम कार्डर स्ट्रेंथ के बेसिस पे वैकेंसी कहां है, क्या है, वो बैलेंस कर रहे हैं. दूसरी चीज अब हम बैलेंस कर रहे हैं इनसाइडर और आउटसाइडर. तो वन थिंग दैट यू विल सी राइट ओवर हियर, दिस इज जो इनसाइडर आउटसाइडर वैकेंसी है हमारी फॉर 2024. तो इन दिस समथिंग विल बी वेरी इजीली विजिबल टू यू. क्या? कि आउटसाइडर्स आर 2 फॉर एवरी 1 इनसाइडर. अप्रोक्सीमेटली ऐसा सही चल रहा है, राइट? ऑब्वियसली 5 में 1 और 4 हो जाएगा, इतना बाल की खाल नहीं उखाड़ेंगे हम. बट जनरल आइडिया क्या है भाई, 1:2 का जनरल रेशियो हर स्टेट कार्डर मेंटेन करने की कोशिश करता है, बेस्ड ऑन कार्डर स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट हैव बीन क्रिएटेड इन दैट गिवन पर्टिकुलर ईयर. तो अब ये जो 1 to 25, 26 to 50 ये वाला फंडा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि पहले सिर्फ ये लेयर भरी जाएगी. Now you will notice that in the state of Sikkim and in the state of Telangana, there are no insider vacancies. तो there is a problem, right? तो अब कुछ चीजें सर्कुलर इस तरीके से रोटेट होती रहेगी. There is another complication. Let's say कि भाई 1 to 25 में there are 3 people from Maharashtra. हो सकता है महाराष्ट्र से lot of people prepare for civil services and because of that, let's say कि भाई rank 5, 15 एंड 25 ये तीनों महाराष्ट्र कैडर के हैं. इन्होंने होम स्टेट अपना एमएच दे रखा है एंड इन्होंने बोला हुआ है यस आई वांट टू सर्व इन माय होम स्टेट. बट क्योंकि अब पहली राउंड में जो वैकेंसी भरेगी वो एक ही भरेगी, तो जो महाराष्ट्र की हमारी वैकेंसी थी वो जी इस नंबर को मिल चुकी है. तो अब ये जो 15 और 25 है ये सेकेंड साइकिल में जाएंगे. मीनिंग अब ये सेकेंड साइकिल में ये लोग second cycle में these people will be allocated the home state, right? Please keep in mind जहां जहां आपका ये red हो जाता है, मतलब those cadres will be skipped क्योंकि अब वहां पे वैकेंसी नहीं है. वैकेंसी नहीं है तो naturally nothing is happening there. तो इस तरीके से कुछ ये चीज चल रही है. ये इतना कॉम्प्लिकेट किया क्यों है? इफ समबडी कैन आस्क कि भाई मतलब अगर रैंडमाइज ही करना था तो भाई सब रैंडम छोड़ देते ना, कि भाई मतलब यू डोंट हैव अ चॉइस, सब कुछ मिल जाएगा. बट दैट्स द थिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑलवेज गिव यू क्लियर कंसाइज रूल्स ऑफ कि भाई देखो ऐसे करेंगे. मे बी इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट द आइडिया इज देयर आर थिंग्स दैट नीड टू बी बैलेंस्ड. There should be people insider and outsider in each state. There should be each category of reserved, unreserved, OBC, SC, ST सब टाइप के लोग हर स्टेट में रिप्रेजेंट होने चाहिए. Why? Because these are again all India services, right? तो इस तरीके से एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल चलता रहेगा. तो ये जनाब जो है इनको दूसरी साइकिल में महाराष्ट्र में there is a second vacancy insider मिल जाएगा. इनको तीसरी साइकिल में महाराष्ट्र में एक और वैकेंसी है, मिल जाएगा. तो सिमिलरली देयर विल बी महाराष्ट्र की जो वैकेंसीज है वो सारी फिल हो जाएंगी. फर्स्ट इंस्टेंस में
जितनी भी ये इनसाइडर वैकेंसीज हैं पहले सिर्फ और सिर्फ ये फिल होंगी। टिल द टाइम द इनसाइडर वैकेंसीज आर नॉट फिल्ड ये साइकिल चलता रहेगा। राइट नेचुरली अब इसमें ऐसा होगा कि भाई मेरिट के बेसिस पे या आपके चांस के बेसिस पे देर आर सम पीपल हु हैव गिवन द प्रेफरेंस फॉर इट बट आर नॉट बीइंग एलोकेटेड देयर स्टेट प्रेफरेंस। सो देन अब आएगी हमारा सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में अब हमारा क्या होने वाला है कि भाई ये जो इनसाइडर वैकेंसीज अगर एक बार भर गई बेस्ड ऑन दीज साइकिल्स, साइकिल्स क्यों है, एक बारी में एक इंडिविजुअल टू ईच स्टेट इज बीइंग एलोकेटेड, हर स्टेट को एक बंदा एलोकेट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ SC ST OBC shall also be allocated cadres in the same manner above as iteratively। और ये जो 5 10 25 वाला एग्जांपल मैंने दिया था दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर इन 3.3। नाउ देयर इज a particular issue कि अब जैसे देयर इज अनरिजर्व्ड वैकेंसी, हमने देखा था कि भाई रिजर्व्ड वैकेंसीज भी हैं एंड अनरिजर्व्ड वैकेंसीज भी हैं। राइट दे आर SC के लिए इतनी वैकेंसीज हैं, ST के लिए इतनी है, अनरिजर्व्ड के लिए इतनी है। तो देन डिफरेंसेस इन वैकेंसीज। नाउ अनरिजर्व्ड के लिए इनसाइडर भी है, SC के लिए भी इनसाइडर है, तो मल्टीपल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो इन सच अ केस इफ अ general candidate, unreserved candidate is not able to fill the unreserved vacancy, माने कि साइकिल ऐसा चल रहा है, रोटेशन ऐसा चल रहा है कि भाई देयर इज नो कैंडिडेट हु इज लेफ्ट फॉर दैट स्टेट एंड देयर आर मोर वैकेंसीज इन दैट स्टेट। मतलब पर्टिकुलर एग्जांपल लें कि भाई लेट्स से दीज बिगर स्टेट्स, एमपी में अब जैसे आपके पास 5 वैकेंसी हैं बट लेट अस से टॉप 200 में आपका एमपी का आईएएस के प्रेफरेंस वाला कोई आया ही नहीं, और जो आया उन्होंने या तो भरा नहीं। तो अब क्या हो गया, 2 लोग भर गए, 3 हमारी खाली रह गई। तो अब खाली तो नहीं जाएगी ये, तो खाली नहीं जाएगी तो क्या होगा, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इसका देखा जाएगा फॉर ST। राइट if an unreserved candidate is not available to fill the unreserved vacancy, that it will be filled by an insider ST candidate। राइट कि इनसाइडर लिस्ट में ST में जिसने MP बोला है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट प्रोवाइडेड देयर शुड बी एन ST आउटसाइडर वैकेंसी अवेलेबल। माने कि वैकेंसी इसको स्वैप किया जा रहा है, यहां पे ST का आउटसाइडर का वैकेंसी था बट सिंस देयर इज नॉट एन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट तो वो आउटसाइडर ST वैकेंसी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन इनसाइडर ST वैकेंसी। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम जाएंगे इनसाइडर SC वैकेंसी पे। अगेन देयर शुड बी एन आउटसाइडर SC वैकेंसी, अगर वो नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। थर्ड हम जाएंगे इनसाइडर OBC पे, प्रोवाइडेड देयर इज अ आउटसाइडर OBC वैकेंसी। तो सिमिलर तरीके से चलता रहेगा कि अगर आपकी वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही है तो द कैटेगरी विल बी चेंज फ्रॉम अनरिजर्व टू ST टू SC एंड OBC। सिमिलरली दिया गया है OBC के लिए कि भाई OBC कैंडिडेट अगर नहीं है तो देन फर्स्ट ST एंड देन SC। राइट SC वैकेंसी अगर नहीं है इसी मैनर में देन पहले ST एंड देन OBC एंड देन अनरिजर्व्ड। ST नहीं है तो फर्स्ट SC देन OBC एंड देन फाइनली अनरिजर्व्ड। तो आइडिया क्या है यहां पे, अगर किसी भी टाइप की वैकेंसी बिकॉज द टाइप ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल आइदर जनरल और OBC और व्हाटएवर, टाइप कैन बी म्यूटेटेड। राइट दिस इज द आइडिया यहां पे दैट दिस इज अ म्यूटेशन एंड दिस म्यूटेशन इज व्हाट इज हेल्पिंग कि भाई फुलफिल तो हो जाए वैकेंसी। ऐसा ना हो कि भाई मतलब आपने जस्ट बिकॉज इस कैटेगरी का बंदा नहीं था तो आपने हायर ही नहीं किया, नहीं, पीपल हैव बीन सिलेक्टेड, दे क्लियर्ड एन एग्जाम, सो देयरफॉर म्यूटेशन करके भी इफ यू कैन मेक स्पेस मेक स्पेस। नाउ लास्ट में अब इसमें आता है इफ देयर आर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, राइट दिस, सो दे विल हैव अ हायर क्लेम। हायर क्लेम किससे, अब हायर क्लेम category would have a higher claim for being adjusted as compared to non PWD candidates। राइट कोर आइडिया यहां पे क्या है कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वैकेंसी रह जाती है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन आउटसाइडर वैकेंसी
जो कि भाई अब जो नेक्स्ट बंदा आउटसाइडर वाले में आएगा वो चलता रहे। तो हो क्या रहा है, पहले हमारी सारी ऐसे इनसाइडर भर गई। फर्स्ट विल फिल द इनसाइडर वैकेंसीज, सेकंड people with benchmark disability, and third is the outsider vacancies. Now insider में भी जैसे बोला गया है जहां जहां availability होगी based on category, तो then there is a certain amount of complication that has been created here, but that is for a reason. Now similar roster system, according to the roster system, after placing insiders at their proper place in the allocation chart will be done on two stages. First for benchmark disability candidates and other than benchmark disability candidates, right? तो basic idea क्या था, पहले insider हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इनको higher preference than this. नाउ पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एक फायदा यहाँ पे और रहता है कि यू आर सपोज टू गिव अ कैडर प्रेफरेंस फॉर टू कैडर्स, वन इज योर होम स्टेट एंड द लाइक सेकंड ऑल्टरनेट कैडर। अब आपको अगर आपका होम स्टेट नहीं मिलता है इफ यूर समबडी विद डिसेबिलिटी, सो देन इन द सेकंड कैडर whether there is a vacancy or not, insider outsider what not, an extra additional vacancy will be created to make space for you in the second choice of state. So this is obviously in order to make India a little more accessible and make India a little more representative. So this is, I think, a good idea over here. Now we come to number 4. राइट तो अब क्या हो रहा है, जो इनसाइडर वैकेंसीज हमारी चल गई हैं इस तरीके से, उसके बाद हमारा सेकंड चीज आ रही है कि who could not be allocated against their insider vacancies in their home cadre. अब क्या होगा कि जो पहले 500 लोग थे, लेट्स से उनमें से इस स्टेज पे 250 पीपल हैव बीन एलोकेटेड, फाइन ग्रेट, बचे हमारे पास 750. नाउ दीस 750 विल अगेन बी अरेंज्ड बाय मेरिट. अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो इनसाइडर वाले थे उनको पहले गिना जाएगा, नहीं. Now this entire list of 750 candidates will be counted on merit once insider have been placed, one let's say people with disability have been placed. तो अगर let's say यहाँ पे 10 है, so this is now remaining 740. तो अब ये 740 based on merit and then फिर इसी तरीके से अपना 1 से 25 अपना साइकिल चलता रहेगा. Now 1 से 25 साइकिल में यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि जो हमने ये ग्रुप्स बनाए थे 1 2 3 4, ये ग्रुप साइकिल हो रहे हैं. 2026 के लिए व्हाट विल हैपन इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल वेस्ट बंगाल. एवरी ग्रुप यहां पे आपका कवर हो जाएगा. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सॉर्ट ऑफ गेमिफिकेशन दैट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट अर्लियर, 2027 का जब हम एलोकेशन स्टार्ट करेंगे तो वो हम ग्रुप 2 से करेंगे, मीनिंग 1 to 25 विल स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड हरियाणा. 28 का होगा तो ग्रुप 3 से करेंगे एंड 29 का होगा तो ग्रुप 4 से करेंगे. द आइडिया इज प्रीटी सिंपल that the Department of Personnel and Training is trying to reduce the gamification जो लोग कर रहे थे कि नहीं मेरा कैडर यहां बैठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा. They want to absolutely reduce that. However, there is a solution to this, which is CBM. Right now, for those of you that know what CBM is, comments में I'm sure लोग पूछेंगे कि भाई क्या है ये CBM. You can let the others know, and we will move forward. तो idea यहाँ पे क्या है कि भाई first insider, outsider, and your बीच में people with disability, but beyond that also ये जो 1 से 25 का हमारा साइकिल चल रहा है, अभी के लिए ये इस ऑर्डर में है. अगले साल ये यहां से शुरू होगा, उसके अगले साल ये यहां से शुरू होगा, उसके अगले साल ये यहां से शुरू होगा, so that even further there is randomization, because what they're expecting is that you are ready to serve India, not कि भाई I want to serve in a region. And that should be the case. If you're coming for all India services, that should be what the expectation is. There are some other things that I want to also discuss in this policy. उन पे भी आ जाते हैं एक बार. Right, so this is point number 5, which I was just telling you about.
for each succeeding year, state cadres should be arranged in the alphabetical order, but with group 1 of the previous year at the bottom. Right? कि भाई अगर हमारा 2026 is starting from group 1, तो then 2027 में will start from 2, 3, 4 and then 1. Group 1 has been placed at bottom. 28 में 3, 4, 1 and 2 will be at bottom. So that is the idea over here. Finally यहाँ पे क्या है? In such a situation कभी कभार क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे migration हो गया. Now this is a last major thing, which is that sometimes there are people from particular reserved categories who have performed really well and they are selected on the basis of general merit. तो अब वो general merit के लिए क्या होता है कि if on general merit they are not being allocated their home cadre, but अगर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो उनको होम कार्डर मिल जाता तो उनको होम कार्डर दे दिया जाएगा. बट अब क्यों कि भाई वेकेंसी जो है वो हमारी रिजर्व्ड थी, सिलेक्शन जो है वो हमारा अनरिजर्व्ड है. तो बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन, व्हाट हैज हैपेंड कि भाई देयर इज एन इम्बैलेंस. तो दैट इम्बैलेंस, unallocated reserved category candidate will be allocated against the unfilled unreserved vacancy as per their merit. So this is the idea कि most things have been taken care of. The one major issue that remains in this is कि home state it's very difficult to still define. कि I've seen people जो करते हैं कि भाई मैंने कॉलेज दिल्ली से किया है तो दिल्ली में होम स्टेट ले रहा हूँ. Some people are like कि मेरे राजस्थान में जमीन है तो मैं वहां से कर रहा हूँ. Some people are like I've been living so far in let's say Guwahati, so therefore Guwahati Assam I'm considering as my home state. So these sorts of things keep coming up from time to time. So that was the explanation of the cadre policy. I hope that made sense. Malab, I've tried to simplify a very, very complicated topic, but if it still didn't make sense, there are some doubts, please do let me know in the comments and I'll try and explain in a different manner. And that's it. All the best on your UPSC journey.